Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Maua. Again, welcome to all of you in this online session of class 10. And this is lecture number 6. And today we discussed about whatever the remain portion of this unit number 2. So at the last we were discussed about the exercise 2.3. Among them, two questions, second, third, and fourth. That three question I already given into the homework. So I hope everyone has gone through of this question number 2, 3, and 4. But some of the students having the problem regarding the question number 3 and 4 both. So today we just starts with the question number 3 and 4th again, and then after we go for the next portions and summaries of these chapters. And I will also provide today some practices regarding the polynomials in the very extensive way, because of you have to know about that there are number of MCQs will ask. So all four categories questions I just provide with one PDF with the solution. So you have to solve these things with this all the questions with this video, and you have to write down this all the questions in your fair book also, isn't it? So let us start with the first question number 3 is there. Obtain all other zeros of 3x fourth plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. So this question number 3, first we have to find out for using this polynomial 3x square is there. 3x fourth plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If 2 is 0, having our under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3, these are the two different zeros here given, that is one is plus and one is minus. So other zeros you have to find using this polynomial. So what to do for that? Just we have to check it out. So this is question number 3 here. Obtain all other zeros. Obtain all other zeros of 3x fourth plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3, then what to do for that? So this is the solution for that. We have provided here the two roots. Everybody knows that is under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3 are the zeros of given polynomials. तो पहले आपको क्या करना है, इसके दो zeros हमको दिए गए. So we have to directly compare these two roots with the x. So one is plus and second one is minus. So we can write down like that way. Therefore x minus under root 5 upon 3 and x plus under root 5 upon 3. So that's why when we compare with x, that time x is equal to under root 5 upon 3. That is the way of first. So if we put then x माइनस, एक रूट को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे और दूसरे रूट को हम इंडिकेट करेंगे प्लस. तो दिस आर द टू रूट्स ऑफ इट. तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स के टू रूट्स हम लिख लेंगे. सेकेंड थिंग इन दिस पोर्शन, x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 एंड x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 3, ये दोनों की जो हम प्रोडक्ट लेंगे, दोनों रूट है हमारे पास. तो यदि उसको हम प्रोडक्ट में लेंगे तो एक x माइनस a और x प्लस a, यानी हमारे पास एक आइडेंटिटी मिल रही है. आप देख सकते हो कि x ये दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन सकती है. क्या बन सकती है? a माइनस बी और a प्लस बी. देन वी कैन से दैट a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आइडेंटिटी में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर दैट x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 x प्लस
under root 5 upon 3. Then we have to choose that x, so x square is there, and अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तब हमें मिलेगा, अंडर रूट निकल जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर है, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. सो दैट वे वी हैव टू यूज एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि वी हैव यूजिंग हियर द आइडेंटिटीज ऑफ इट. अब हमारे पास जो भी फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, उसी से ही हम पूरे पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे विथ द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो जस्ट वी हैव टू टेक इट दैट किससे हम डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 से. सो लेट अस मूव ऑन इट. जस्ट वी हैव टू यूज इन द अर्लियर मेथड. हमने देखा है कि हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, 3x square plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. That is our first polynomial, that is known as p of x. And second one, that is our divisor, x square minus 5 by 3. Similar way दोनों को हम कंपेयर करेंगे. तब एक टर्म्स का आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड एंड डिवाइज़र, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे लाइक दैट वे. 3x4 यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, कौन सी है, 3x4, और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ 4 से कट होगा, मतलब यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर. सो वही 3x स्क्वायर हम क्वेश्चन में लिखेंगे 3x स्क्वायर. समझ में आ गया कैसे हमने उसको मल्टीप्लाई किया है. मेन चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन, जब हमें मिलता है 3x स्क्वायर और उसी को हम डिवाइज़र के ईच टर्म्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी दिक्कत आती है. जैसे कि अब हमें क्या करना है कि 3x स्क्वायर है, अब 3x स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है इसी 3x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ भी और माइनस 5/3 के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना है. तब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x4 मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5/3. तो ये 3x स्क्वायर इंटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से तो 3 कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 5x स्क्वायर. सो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है. मेन चीज़ है कैसे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना, वही चीज़ को ही समझना है. समझ में आ गया मैंने कैसे, ये फिर से मैं बता रहा हूँ. 3x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 5/3 के ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ और बाद में 3x स्क्वायर को 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x4 होगा, और 5/3 के साथ जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तब 3 कट हो जाएगा, तो रिमेन बचता है माइनस 5x स्क्वायर. तो ये हुआ आपकी प्रोसीजर नंबर 1. फिर वही चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जैसे कि आगे भी करते थे. जो भी माइनस प्लस साइन दिख रहा है उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो दिस इज़ अ माइनस एंड दिस इज़ अ प्लस, तो माइनस होगा तो ये कट यहाँ से हो जाएगा, तो प्लस 6x³ प्लस 5x स्क्वायर यानी प्लस होगा. तो अब ये दोनों के बीच का जो टोटल्स है वो टोटल कितना हो सकता है, 6x³ एंड 5x³. अभी 5x स्क्वायर एक्चुअल में किसके नीचे आएगा, -2x स्क्वायर के नीचे, तो हमें समझना वहीं पे ही है. तो 6x³ एज इट इज़ हमने लिखा है यहाँ पे क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है x³. सेकंड टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ देंगे तो -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर. तो हमारे पास ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर नंबर की साइन रहेगी, दैट्स वाई प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 2 गया तो कितना बचता है 3. सो दैट वे 3x स्क्वायर इज देयर, -10x and -5 that
कैरी फॉरवर्ड हियर एज इट इज। तो ये हो गया आपका पोर्शन, और ये वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड स्टेप्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। अभी भी आप देख सकते हो कि 6x³ वो x स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब जब तक हमारे रिमाइंडर में x स्क्वायर से यानी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से कम ना आए तब तक हमें ये प्रोसीजर कंटिन्यू करनी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। सो 6x³ + 3x² - 10x - 5। अगेन इसकी फर्स्ट टर्म हम लेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे 6x³ और उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर दैट इज़ x²। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6x। तो 3x² के बाद हमारे सेकंड स्टेप में क्वेश्चन में आएगा 6x, और फिर से 6x को डिवाइजर x² - 5/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यदि पूरा समझ में नहीं आता तो ऐसे ही लिख दो, 6x आपका है मल्टीप्लिकेशन, और आपको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको ब्रैकेट में रख दो ऐसे ही। अब आप देख सकते हो कि 6x इंटू x² यानी 6x³ आ गया, ओके, माइनस 6x इंटू 5/3। तो आप देख सकते हो कि जब हम 6x को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये 3 है उसका कट होगा यहाँ 2 से, 3 2s आर यानी 2x ही बचा वहाँ पे, 2x इंटू 5 यानी 10x, तो वो 10x ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट याद रखना है कि जो लाइक टर्म है उसके नीचे ही हम लिखें। यहाँ पे जैसे एक बार हमने अलग किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना 6x³ - 10x, ये ख़त्म हो गया। अब माइनस प्लस का रूल जो भी है वो हम लिखेंगे, तो 6x³ जो हमारा है वो यहाँ से कट हो सकता है। सो दैट इज वी हैव टू यूज 6x³ - 10x। अब ये कट हो जाएगा, दैट्स वाई वी गॉट 3x² - 5 इज देयर, क्योंकि -10x + 10x भी कट हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली वी गॉट 3x² - 5। अगेन सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, तो 3x² - 5 मतलब 3x² को x² से कट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में बचेगा 3, और 3 को वही x² - 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² - 5 बचेगा। तब a माइनस माइनस दोनों प्लस माइनस होंगे, तो इट विल बी कंसिडर एज ए 0। सो हियर क्वेश्चन 3x² + 6x + 3 एंड द रिमाइंडर मस्ट बी हियर द 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि p ऑफ x मतलब डिविडर, g ऑफ x मतलब हमारा डिवाइज़र, एंड q ऑफ x मतलब हमारा क्वेश्चन और डिवाइज़र का मल्टीप्लिकेशन में यदि हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारा डिविडेंड बनता है। सो उसी को ही हम कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि हम वही इक्वेशंस के अंदर यदि हम रख दें तो ये इक्वेशन भी हमें सॉल्यूशन दिखाता है, और कभी कभी हमारा पॉइंट जो भी हम ज़ीरोज़ लाते हैं वो ज़ीरोज़ यदि इसमें इम्प्लीमेंट होता कि नहीं उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते। तो ये एक वेरिफिकेशन स्टाइल भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3x² p ऑफ x की जगह पे हम रखेंगे 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। और सिमिलर वे जो चीज़ हमें मिली है, डिवाइज़र जो था वो डिवाइज़र की जगह पे, क्वेश्चन था जो भी मिला वो क्वेश्चन की जगह पे, और रिमाइंडर जो मिला वो सब जगह पे यदि हम रखते हैं, then it is clear that the zeros of 3x² + 6x + 3 are the remaining zeros of p of x, क्योंकि ज़ीरो ही ऐसा है आफ्टर गिवन 2 रूट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रूट्स दिए गए थे उसमें से ज़ीरो ही ऐसा है कि अनदर 1 ज़ीरोस हो सकता है। तो ये हुआ आपका 0। फाइनली we got these things and both of the remaining portions we have to cover। तो इस तरह से हमें पूरी
सॉल्यूशन है वो निकालना है। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, so -1 and -1 that are the remaining zero of it after putting it into the q of x। क्वेश्चन में यदि हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द वन अनदर जीरोज ऑफ इट। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्यूशन है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, जिसको भी डाउट था वो डाउट यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो पूरी प्रोसीजर है इस तरह से आपको बतानी थी क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर से इक्वेशन नंबर 3 यदि आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ। यू कैन ऑल्सो पोज इट एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट डाउन द सॉल्यूशन of this question number 3. So this is whole division after taking the two roots of it. After find out the remainder, we will put into the division algorithm. Division algorithm is the dividend is equal to divisor into quotient plus remainder में हम रखेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, then it will be considered as a one zeros of it. देन फाइनली वी पुट इनटू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के अंदर जब हम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 0 है, तो 0 के साथ जब हम 3x² + 6x + 3 का कंपैरिजन करेंगे देन वी विल फाइंड आउट द अनदर रूट्स ऑफ इट। अब ये जो रूट मिल रहा है वो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, मतलब -1 and -1 आर द रूट्स ऑफ अनदर थिंग्स। सो दैट इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ इट। You can also write down in your fair book. So let us move on to the another point. Now this is the question number 4. 2, 3 and 4. 3 questions I already given for the question number exercise 2.3. So among them the fourth one में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम था, मुझे बताया था। तो फोर्थ क्वेश्चंस को भी आप समझ लो कैसे करना है। On dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial g of x, the quotients and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. So find g of x. So here we are using dividend. Dividend कौन है हमारा? जो polynomials है p of x. So x³ - 3x² + x² x + 2, that is our डिविडेंड। डिवाइज़र हमें यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि वो फाइंड करना है। क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे गिवन है x - 2 एंड रिमाइंडर r ऑफ x दैट इज़ ऑल्सो भी गिवन -2x + 4। तो उसी को हम डिवीज़न एल्गोरिथम में कंसिडर करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम का इक्वेशन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो चीज़ हमें बताई गई है यहाँ पे वो सभी चीज़ को हम इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में रखेंगे। सो डिविडेंड है हमारा x³ - 3x² + x + 2। डिवाइज़र हमारा फाइंड करना है। सो g of x एज इट इज़। क्वेश्चन हमें गिवन है x - 2 और रिमाइंडर हमें गिवन है -2x + 4। बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे बचती है उसको हम कंसिडर करेंगे x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4। सो g of x x - 2 इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 2। तो यहाँ पे जो बचता है वो x³ और x - 2 है, जो यहाँ पे सामने दिखता है वो इसके नीचे जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवीज़न में आएगा। तो हम सीधा उसको डिवाइड करेंगे x³ - 3x² + 3x - 2 को x - 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले इस स्टेप तक हमें आना है। इस स्टेप तक आ जाने के बाद हमारी ओरिजिनली जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उस डिवीज़न मेथड से हम उसको मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न करेंगे। जैसे कि x³ - 3x² + 3x - 2 वो हो गया हमारा डिविडेंड एंड x - 2 हो गया हमारा डिवाइज़र। तो उसी तरह से जब हम उसको डिवाइड करेंगे देन फाइनली वी गॉट द x² - x + 1
दैट इज़ आवर क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस फाइंड कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं दिया गया था, दैट्स वाई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो, उसको पोज कर लो, रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो कि पूरा सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। इज इट क्लियर? सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. This is the last one question, is that examples of the polynomials p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and the degree of p of x is equal to degree of q of x. तो हमें यहाँ पे p of x given है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, g of x हमारा 2 है, q of x हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 है एंड r of x इज इक्वल टू 0. तो हमें जो भी एग्जांपल्स गिवन है उसके ऊपर से ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड फाइनली वी पुट इनटू द डिवीजन एल्गोरिदम लाइक p of x इज इक्वल टू q of x इंटू g of x प्लस rx. तो ये हो गया फर्स्ट वन. दिस इज द सेकेंड वन. हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री ऑफ q of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r of x. तो दिस इज द 5.2 is considered here and this is the 5.3. अगेन आपको सिर्फ उसके इक्वेशन में ही रखना है और यू हैव टू सॉल्व आउट दैट आइदर इट इज़ ओके और नॉट. एंड दिस ऑल थ्री क्वेश्चंस आई मेड इट हियर, द 5.1, 2 and 3. मतलब दिस इज ऑल द क्वेश्चंस इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर 5. सो एट द एंड ऑफ दिस unit I conclude all the points, whatever you have to doubt that I solved today, so you can also rewind it, this video, and you can solve it from this video. So I hope so that everyone is now most of the doubts are solved using this video. If you having till any kind of the doubts regarding this all the questions, you can ask me. So let us move on to the last one point of the summaries. So all these 5 questions, question number 5 just I included in the previous part of the solution, so you can make it. Now exercise 2.4 is the optional, so there is no need to take over here. Up to the exercise 2.1, 2.2, 2.3, all the questions you have to make into the fair book. Whenever I ask for the submission of your fair book, that time you have to submit it. Okay, at the end of this session we just conclude the summary. Summaries में जो भी points है, you can also tick marks over on your textbook because of it will ask into the examination point of view in the MCQs, true or false, one words, these kinds of the questions will ask. So let us move on to the summaries parts over here. This is the 2.5 summaries over here. In this chapter we already studied whatever the following points are there. So you have to study the following points, among them the first one points. मैं पहले points की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लेना कि because of it's very important for you. Okay, so first point is polynomials of degree 1, 2 and 3 are called linear, quadratic and cubic polynomials respectively. जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक एंड जिसकी 3 डिग्रीज है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक. तो ये सब चीज़ समरीज में आप याद रखेंगे. सेकंड वन इज दैट ए क्वाड्रेटिक polynomials in x with real coefficient is of the form of ax square plus bx plus c. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का वो होता है एक ax square plus bx plus c, where a, b, c are the real numbers. That is also be covered here. A is not equal to 0. Similar way, third one is there the zeros of the polynomials p of x are precisely the x coordinates of the points where the graph of y is equal to p of x intersect the x axis.
तो जब p ऑफ x के ऊपर होता है तब y क्या होता है, p ऑफ x की तरह वो ही पोलिनोमियल्स y का कोऑर्डिनेट्स इंडिकेट्स करता है। मतलब x कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप देखते हो तो आपको y मिलता है, और y के ऊपर आप जब इम्प्लीमेंट करते हो तब आपको x कोऑर्डिनेट मिलता है। सो दैट इज द पॉइंट नंबर 3 इज देयर। देन फोर्थ वन इज दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव इट मोस्ट 2 zeros। कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में? एट मोस्ट 2 zeros होते हैं। 2 से ज़्यादा हो भी सकते हैं, बट एट मोस्ट 2 तो होते ही है। एंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। उसके 3 zeros होते हैं, क्यूबिक के 3 और क्वाड्रेटिक के 2। ये आप चीज़ याद रख सकते हो, बिकॉज ऑफ इट विल आस्क यू टू द fill in the blanks or in any MCQs also. So fourth points are clear, and then after we go for the fifth one point. आपका जो फिफ्थ पॉइंट था वो फिफ्थ पॉइंट इस तरह से इंडिकेट्स कर रहे हैं हम कि आपको इक्वेशन की तरह भी याद रहना चाहिए और उसको कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स आगे देख चुके हैं। सो फिफ्थ वन पॉइंट इज सजेस्टिंग अस दैट if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials ax square, so we have to use first one is considered here alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha beta, that is considered alpha into beta, that is considered c upon a. तो दैट इज़ ऑल्सो बी यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस तरह से हमें इंडिकेट्स किया गया है तब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। दैट टाइम द सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज बी कंसिडर माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 different zeros are always consider the c upon a। तो ये इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हमें याद रखना है। एंड 6(1) इफ अल्फा बीटा एंड गैमा, इट इज यूजली फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, that time ax cubed plus bx square plus cx plus d, that is the standard form of cubic। आप याद रखिएगा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तब हमें 3 वेरिएबल अल्फ़ा बीटा एंड गेमा, 3 zeros आर देयर, क्योंकि अभी बताया कि क्वाड्रेटिक में 2 0 होता है यानी अल्फ़ा बीटा, और क्यूबिक में 3 होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। सो अल्फ़ा बीटा गैमा का एडिशन यानी सम ऑफ द 3 वेरिएबल्स, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दैट इज कंसिडर्ड हियर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलर वे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड लास्ट वन, the product of 3 different zeros alpha beta and gamma is obviously equal to minus d upon a। तो ये तीनों इक्वेशन भी आपको याद रख लेना। इज इट क्लियर? लास्ट वन, द डिवीजन एल्गोरिथम हमने सीखा। स्टेट द गिवन एंड पोलिनोमियल्स p of x and any non-zero polynomials of g of x। there are polynomials q of x and r of x such that we have to use fully this division algorithm। p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x is equal to 0 or degree r of x is less than degree of g of x। मैंने आपको सम में भी बताया कि जब तक आपकी डिवाइज़र की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री छोटी ना आए तब तक आप उस प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। या तो 0 हो सकता है या तो डिवाइज़र से आपकी रिमाइंडर वाली डिग्री जो होती है वो कम होती है। तो ये चीज़, ये फंडामेंटल्स, ये समरीज आप याद रखेंगे। एंड लास्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज 2.3 इन योर फेयर बुक, यू हैव टू राइट दिस ऑल 7 पॉइंट्स एज ए समरी। समझ में आ गया? तो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको समरी डिटेक्ट करनी है। आज के होमवर्क में भी यही रहेगा
you have to write down all the summaries point 1 2 3 4 5 6 7. You have to write in your fair book and you have to send this photograph to today's homework. Is it clear? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि whatever the points is given in summaries that you have to depicted in your fair book, you have to write in your fair book and then after you have to send today's points. तो ये सातों सात पॉइंट इस चैप्टर्स के आपको क्लियरली आने चाहिए. इस वीडियो के साथ मैं एक PDF भी भेज रहा हूँ थोड़े MCQs की सॉल्यूशन के साथ, थोड़े ट्रू फॉल्स की MCQs के साथ, वन वर्ड्स की. तो ये सभी चीज़ आपको इस चैप्टर की समरी के बाद आप अपनी फेयर बुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगी. बट इट विल नॉट सेंड इट टुडे, but whenever I ask, that time I checked each and everything whatever I provided. Okay, so I hope so that you have to understood well, and now we conclude this unit. Next time we will start another unit. So up to the end of this unit you have to clear, and today's homework is considered the all 7 points of the summary. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.